A riot of losers on the violence of Jair Bolsonaro supporters in Brazil. Well before he was defeated by Luiz Inácio Lula da Silva in last year's presidential elections in Brazil, Jair Bolsonaro had repeatedly said that if he failed to get re-elected, it could only be through fraud. He called his political rivals thieves and warned of violence if voted out. After his election defeat, he refused to concede publicly. 2 days ahead of Lula's inauguration on January 1st, he left Brazil for Florida, while his supporters continued to stage camp protests outside Brazilia's army headquarters. Unsurprisingly, a week after Lula was inaugurated, thousands of Mr. Bolsonaro's supporters stormed the institutional trinity of Brazil democracy, the presidential palace, the Supreme Court and Congress, saying the election was stolen and demanding that the military shut down Lula's government. Mr. Bolsonaro has to take the blame for what happened in Brasilia on Sunday, which was reminiscent of the January 6, 2021 riots at the U.S. Capitol by Donald Trump's supporters. While in power, he had flirted with the anti-institution, conspiracy-peddling far-right fringes of Brazilian polity. Mr. Bolsonaro, a fan of the military dictatorship, had little respect for the country's institutions. His silence, along with support from Brazil's wealthy classes, seems to have empowered the protesters to invade state institutions on Sunday. For Lula, the riots posed the first major challenge to his presidency. He said the local police, under the control of Brasilia's Governor Ibanez Rocha, a Bolsonaro ally, did not do enough to stop the invaders. But Lula quickly deployed federal security officials, clearing the rioters of state buildings. The Supreme Court also stepped in, ordering the military police to clear the camps of Mr. Bolsonaro's supporters outside the military headquarters and removed Mr. Rocha from office for 3 months. But that is not enough. For its own political stability, Brazil should put an end to this election-related crisis. Until now, its institutions have dealt with threats from the fringe groups with maturity. But Brazil, a relatively young democracy, has a not-so-distant violent past, and its leaders should not entertain any kind of threat to its democratic stability. Brazil should get to the bottom of the riots through a thorough probe, bring all the culprits, from the instigators and the financiers to the participants, to justice, and make sure that such an incident does not occur again. Meanwhile, the least Mr. Bolsonaro could do, pending probe, is to publicly concede that he was defeated in the elections, and ask his supporters to accept this fact and respect the country's constitution. तो का दंगा, ब्राजील में बोल्सोनारो समर्थकों की हिंसा। ब्राजील में पिछले साल हुए राष्ट्रपति चुनाव में लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा के हाथों शिकस्त खाने से पहले, जायर बोल्सोनारो ने बार-बार यह कहा था कि अगर वह राष्ट्रपति पद के लिए दोबारा नहीं चुने जाते हैं, तो ऐसा सिर्फ धोखाधड़ी के जरिए ही मुमकिन है। उन्होंने अपने राजनीतिक विरोधियों को चोर कहा और निर्वाचित न होने की स्थिति में हिंसा की चेतावनी दी थी। चुनावी हार के बाद उन्होंने सार्वजनिक तौर पर पद छोड़ने से इनकार कर दिया। 1 जनवरी को लुला के पदभार संभालने से 2 दिन पहले वह ब्राजील छोड़कर फ्लोरिडा चले गए। वहीं उनके समर्थकों ने ब्राजीलिया में सेना मुख्यालय के बाहर तंबू डालकर विरोध प्रदर्शन जारी रखा। हैरत की बात नहीं है कि लुला के पदभार संभालने के 1 हफ्ते बाद श्री बोल्सोनारो के हजारों समर्थकों ने ब्राजील में लोकतंत्र के 3 संस्थागत प्रतीकों राष्ट्रपति भवन, सर्वोच्च न्यायालय और कांग्रेस पर हमला बोल दिया। उनका कहना है कि चुनाव में धांधली हुई है। वे सेना से अपील कर रहे हैं कि लुला की सरकार को अपदस्थ करके वह सत्ता अपने हाथ में ले ले। रविवार को ब्राजीलिया में जो कुछ हुआ उसके लिए श्री बोल्सोनारो को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। यह डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों द्वारा यूएस कैपिटॉल पर 4 जनवरी 2021 को किए गए हमले की याद दिलाता है। सत्ता में रहते हुए, उन्होंने संस्था विरोधी और ब्राजील की राजनीति में षड्यंत्र रचने वाले धुर दक्षिणपंथी लंपट तत्वों को बढ़ावा दिया। सैन्य तानाशाही के समर्थक श्री बोल्सोनारो के मन में देश की संस्थाओं के प्रति कोई सम्मान नहीं था। ब्राजील के धनी वर्ग का समर्थन और उनकी चुप्पी ने प्रदर्शनकारियों को रविवार को राज्य की संस्थाओं पर हमला करने का मंसूबा प्रदान किया। इस दंगे ने लुला के सामने बतौर राष्ट्रपति पहली बड़ी चुनौती पेश की है।
उन्होंने कहा कि बोल्सोनारो के सहयोगी ब्राजीलिया के गवर्नर इबनीस रोचा के नियंत्रण वाली स्थानीय पुलिस ने हमलावरों को रोकने के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं की। लेकिन लुला ने जल्द ही संघीय सुरक्षा अधिकारियों को तैनात कर दिया और दंगाइयों को राजकीय इमारतों से खदेड़ दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने भी हस्तक्षेप किया और सैन्य पुलिस को सेना मुख्यालय के बाहर श्री बोल्सोनारो के समर्थकों के शिविरों को खाली कराने का आदेश दिया। साथ ही श्री रोचा को 3 महीने के लिए पद से हटा दिया। हालांकि यह काफी नहीं है। देश की स्थिरता के लिहाज से ब्राजील को चुनाव से जुड़े इस संकट को खत्म करना चाहिए। अब तक इसके संस्थान लंपट तत्वों से पैदा होने वाले खतरों से परिपक्वता के साथ निपटे हैं। हालांकि अपेक्षाकृत एक युवा लोकतंत्र के रूप में ब्राजील का हिंसक अतीत बहुत पुराना नहीं है। इसलिए इनके नेताओं को लोकतांत्रिक स्थिरता पर किसी भी तरह के खतरे को नहीं सहना चाहिए। ब्राजील को पूरे मामले की जांच के जरिए दंगों की तह तक जाना चाहिए। साथ ही इस दंगे को उकसाने वाले, इसे वित्तीय मदद पहुंचाने वाले और इसमें शरीक होने वाले सभी लोगों को न्याय के कटघरे में खड़ा करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटना दोबारा न हो। इस बीच जांच के लंबित रहने के दौरान श्री बोल्सोनारो कम से कम सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार कर सकते हैं कि उन्हें चुनाव में शिकस्त मिली है और अपने समर्थकों से इस तथ्य को मान लेने और देश के संविधान का सम्मान करने को कह सकते हैं।